آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حکومت اور حکمران جماعت میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تال میل ضروری ہے۔ پارٹی قائدین بوتھ، دیہات اور منڈل کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹی پی سی سی پولیٹیکل آفیسرز کمیٹی کے اجلاس سے کیا خطاب۔ ریاست بھر کے 129 میونسپل کمشنروں کے کیے گئے تبادلے، بلدی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا اقدام۔ فرنچ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک اعلیٰ سطحی گول میز اجلاس کا اہتمام، آئی ٹی وزیر کی شرکت۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ پاسپورٹ درخواستوں کی یکسوئی میں تلنگانہ پولیس نے ملک بھر میں سر فہرست مقام کیا حاصل۔ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس شیوا دھر ریڈی نے دہلی میں ایوارڈ کیا حاصل۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کابینہ نے چوٹ اپل سے سنگاریڈی تک 201 کلومیٹر طویل ریجنل رنگ روڈ کے تعمیری منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ پیر کو منعقد ہوئے کابینی اجلاس کے بعد ریاستی وزیر این سریواس ریڈی نے بتایا کہ کسانوں کے لیے ریتو بھروسہ اسکیم کل یعنی منگل کو مکمل ہو رہی ہے اور 9 دنوں کے دوران 9,000 کروڑ روپے کسانوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ بناکا چلا کے مسئلے پر بھی انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کو تلنگانہ کا پانی دینے کی افواہیں غلط ہے اور ہم اس پروجیکٹ کے مسئلے پر قانونی اور عدالتی طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ گوداوری کے پانی کا ایک قطرہ بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور جولائی کے پہلے ہفتے میں مرکز کے سامنے ریاست اپنا موقف پیش کرے گا۔ فرنچ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری EFCCI کے زیر اہتمام ایک اعلیٰ سطحی گول میز اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور ممتاز فرانسیسی کاروباری نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، صاف توانائی اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے فرانسیسی کمپنیوں سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ کے اہم پروجیکٹ فیوچر سٹی میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کریں۔ یہ پروجیکٹ 30,000 ایکڑ پر محیط ایک عالمی اختراعی مرکز ہوگا جو خانگی عوامی شراکت داری ماڈل کے تحت کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سکندرآباد میں ہونے والے اجین مہاکالی بونال تہوار کو تاریخی انداز میں منانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے 13 جولائی کو ہونے والے بونال تہوار کے موقع پر مندر میں درشن کے بعد مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر نے کہا کہ تمام محکمہ جات کے تال میل اور عوامی تعاون سے بونال تہوار کو کامیابی سے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مذہبی تہوار کی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر رکھ کر منایا جانا چاہیے۔ بونال تہوار کے موقع پر لاکھوں افراد کی آمد متوقع ہے۔ اس کے پیش نظر وزیر موصوف نے حکام کو ہدایت دی کہ ان کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائے۔ تلنگانہ حکومت نے بلدی نظم و نسق میں اہم قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کی بلدیات میں انتظامی سطح پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہے۔ اس سلسلے میں ریاست بھر کے 129 میونسپل کمشنروں کے تبادلے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق تبادلہ کیے گئے افراد میں بعض کو ترقی دی گئی ہے جبکہ بعض کی کارکردگی
तसल्ली बख्श ना होने पर उनका तबादला किया गया है। हाल ही में IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब म्यूनसिपल कमिश्नर्स को तरक्की दी है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी का एक इजलास कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अमल में आया। इस इजलास में तेलंगाना सियासी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर PCC महेश कुमार गौड़, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अलावा सरकर्दा कायदीन और कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और हुक्मरान जमात में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तालमेल ज़रूरी है। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो बूथ, देहात और मंडल सतह पर कमेटियां तश्कील देते हुए पार्टी को मजबूत करें और इस सतह से हुकूमत की स्कीमात आवाम तक बेहतर तौर पर पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी के लिए काम करने वालों को पार्टी ओहदों से नवाज रही है। इस इजलास से दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रमनसपुरा, किशनबाग और जहनुमा डिवीजन्स का दौरा किया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कहा कि मज़कूरा इलाक़ों में जारी नालों के तोसी काम सुस्त रवि का शिकार है और GHMC ओहदेदारों को मज़कूरा कामों की ताख़ीर से दरपेश अवामी मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया गया है। मोहम्मद मुबीन ने मज़ीद कहा कि हुसूल अराज़ी के लिए मुतासरीन में फ़ौरी चेक्स की फराहमी से कामों में उजलत पैदा होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक से लेकर ख्वाजा फंक्शन हॉल तक नाले की तोसी काम की मंजूरी के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर दिलचस्पी नहीं ले रहा है, इसलिए मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करते हुए असर नो टेंडर की अजराई की मांग की गई है। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा GHMC के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना समेत दीगर हक्काम भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा जहनुमा कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने भी अपने अपने डिवीजन्स के तरक्याती कामों की ताख़ीर और अवामी मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राघवनंदन राव ने दावा किया है कि उन्हें माओइस्टों की जानिब से जान से मारने की धमकी मिली है। राघवनंदन राव का दावा है कि ये एक इंटरनेट कॉल थी, इसलिए कॉल की असल नवीयत का पता नहीं चल सका है। राघवनंदन राव ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरी कॉलें मौसूल हुई हैं। कॉलर ने अपनी शिनाख्त मध्य प्रदेश के एक माओइस्ट के तौर पर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये धमकी भरे कॉल 2 मरतबा मौसूल हुई और दोनों मरतबा उनका फ़ोन उनके असिस्टेंट के पास था। असिस्टेंट ने दूसरी कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतज़ामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नर्स के तबादले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तबादला किए गए अफराद में बास को तरक्की दी गई है, जबकि बास की कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना होने पर उनका तबादला किया गया है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अहकाम फ़ौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होंगे। इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले T राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है।
इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने पीर के रोज़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक असिस्टेंट इंजीनियर को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खातून अफसर की शिनाख्त मनीषा के तौर पर की गई है। ACB ने उन्हें अमीरपेट दफ्तर में मौके पर ही हिरासत में ले लिया। ACB हक्काम ने कहा है कि मनीषा ने मुबैना तौर पर ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स की मंजूरी के लिए रिश्वत तलब की थी और पहले ही 5,000 रुपये वसूल कर चुकी थी। उन्हें दूसरी किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ACB ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हकाम ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की जानिब से रिश्वत तलब की जाए तो वो ब्यूरो से फौरी राब्ता करें। हैदराबाद के जिड़मिटला में एक नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि लड़की ने मां की जानिब से बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात के एतराज़ पर मां का कत्ल कर दिया। ये वाक़या पीर 23 जून को हैदराबाद के जिड़मिटला में पेश आया। महलू खातून की शिनाख्त 39 साला एस अंजलि के तौर पर की गई है, जो अपनी बेटी के साथ जिड़मिटला के NLB नगर में रिहाइश पजीर थी। अंजलि की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड 19 साला पी शिवा और उसका 18 साला भाई पी यशवंत ने मुबैना तौर पर अंजलि को चाकुओं से हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। एक इत्तला के मुताबिक अंजलि और उसके साथियों ने मिलकर मां का गला घोट दिया और सलाखों से सर पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। इत्तला मिलते ही जिड़मिटला पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। बताया जाता है कि अंजलि की 16 साला मुलजिम बेटी 10वीं जमात की ही तालिबा है। ఒక సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం మేరకు జీడిమెట్ల పరిధిలో ఉన్న ఇది లాల్ బహదూర్ నగర్ ఈ ఏరియాలో ఒక ఇంట్లో ఒక స్త్రీ హత్యకు గురైన దాంతో ఇమీడియట్ గా SHO జీడిమెట్ల అండ్ స్టాఫ్ వచ్చి పరిశీలించగా 39 సంవత్సరాల వయసున్న అంజలి అనే మహిళ చనిపోయి కనిపించింది. తర్వాత ఆ మృతికి సంబంధించిన కారణాలు మా సిబ్బంది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయగా ఆరా చేయగా తెలిసింది ఏంటంటే ఈవిడికి 2 కూతుర్లు ఉన్నారు. ఒక కూతురు వయసు 16 సంవత్సరాలు. అమ్మాయి పేరు తేజస్వి. ఆ అమ్మాయి ఈ నెల 19వ తారీఖు ఒక లవ్ అఫైర్ తోటి ఒక వ్యక్తితో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెంటనే ఆ తల్లి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసింది. వెంటనే ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ 20వ తారీఖే మా జిడిమెట్ల పోలీసు వారు అమ్మాయిని ఆ వ్యక్తిని కనిపెట్టి ఇమీడియట్ గా ఆ అమ్మాయిని ఆ తల్లికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తల్లి బిడ్డకి ఇద్దరికి ఆ విషయంలో మనస్పర్ధలు వచ్చినాయి. ఆ అమ్మాయి తేజశ్రీ ఎవరైతే ఉందో ఆ అమ్మాయి తల్లిని ఎట్లాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాల్సిందే, నేను ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి ఎవరైతే అమ్మాయి ప్రేమించిన అబ్బాయి ఉన్నాడో శివ, ఇతను కట్టంగూరులో ఉంటాడు, నల్లగొండ జిల్లా. ఆ శివాన్ని పిలిచి తన తల్లిని హత్య చేయవలసిందిగా పురికొల్పింది. దాంతో శివ వచ్చి యశ్వంత్ అనే వాళ్ళ తమ్ముడిని కూడా తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈవిడ్ని చున్నీతోటి గొంతుకి బిగించి చంపడం జరిగింది. ఇది రాత్రి 7:30 జరిగింది. వెంటనే మాకు 11:30కి సమాచారం రాగానే ఇమీడియట్ గా FIR కూడా చేసినాము. సో వీఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఇట్, వి విల్ క్యాచ్ ద శివతో పాటు శివ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు. हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक ही मोटरसाइकिल पर 8 नौजवानों के खतरनाक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 8 नौजवान एक ही बाइक पर बैठकर ट्रैफिक के दरमियान स्टंट करते हुए जा रहे थे। कुछ नौजवान हैंडल बार, फ्यूल टैंक नशिस्त और पीछे की जगह पर बैठे थे, जो ट्रैफिक कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से नौजवानों की शिनाख्त की और उन सबको हिरासत में ले लिया। उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस हकाम ने बताया कि नौजवानों को मशवरा देने, जुर्माने और गिरफ्तारियों के बावजूद शहर में इस किस्म के ख़तरनाक स्टंट्स का रुझान ख़त्म नहीं हो रहा है। उन्होंने वालिदैन और आवाम से अपील की है कि वो नौजवानों को ऐसे ख़तरनाक हरकतों से बाज रखें ताकि उनकी और दूसरों की जान महफूज हो सके।
आंध्र प्रदेश के ज़िले अंकापल्ली में एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और कई दीगर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने जंक्शन के करीब नेशनल हाईवे पर सिंगल्स पर रुके हुए मुतादिद गाड़ियों को रोन डाला। पुलिस के मुताबिक ट्रक ने पहले 3 कारों और 10 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, जिसके बाद एक कंटेनर ट्रक से जा टकराया। इब्तिदाई जांच में बताया गया है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने के बायस ये हादसा पेश आया। तसादुम के नतीजे में कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं या बुरी तरह मुतासिर हुई। अचानक पेश आए इस हादसे से मुकामी आबादी और राहगीरों में खौफ व हिरास फैल गया था। संतोष नगर पुलिस की जानिब से फ़तेह नगर मोइनबाग में वाक़ एक खानगी स्कूल में ड्रग्स के नुकसानात पर मुबनी एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। ACP सुखदेव सिंह ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी खिताब भी किया। संतोष नगर इंस्पेक्टर के सत्यनारायणा ने प्रोग्राम की निगरानी की और तलबा तालिबात से खिताब भी किया। इस मौके पर स्कूली तलबा के अलावा असातिज़ा और पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिक स्कूल में बच्चों को ड्रग अब्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और इसके बारे में ड्रग अब्यूज़ के बारे में बच्चों को समझाया गया। यहाँ पे सबको कल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में का दिन है कल। उससे पहले कि पूरे स्कूल में हम लोग हमारे CP सर और DCP ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आज हम लोग ये यूनिक स्कूल में ड्रग अब्यूज़ के बारे में पूरे बच्चों को ड्रग्स लेने से क्या नुकसान है पूरे उनको समझाया गया और बच्चों को बोले इसके नुकसान क्या है उसके बारे में भी पूरा समझाया गया और बच्चों को इसके बारे में नहीं लेना बोल के भी पूरे उनके बारे में बोले और उनको 2 टोल फ्री नंबर्स जो नेशनल टोल फ्री नंबर है और नेशनल टोल फ्री नंबर है उन लोगों के बारे में भी उन लोगों को बोला गया। जब कभी भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी लोगों को मालूम पड़ा तो ये नंबर पे कॉल करो बोल के भी उन लोगों को समझाया गया। हैदराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ जोन्स में ड्रग्स के नुकसानात और इसके नताइज के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी पर मुबनी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत चंचलगुड़े में वाक़ खानगी कॉलेज में तलबा तालिबात के लिए मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। DCP साउथ ईस्ट S चैतन्या कुमार ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब भी किया। इस मौके पर एडिशनल DCP ACP SHO दबिलपुरा के अलावा दीगर मौजूद थे। शमशाबाद एक्साइज पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में ड्रग्स की मुंतकली को नाकाम बनाया और इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लेते हुए इसके कब्ज़े से 23 ग्राम MDMA ड्रग्स और दीगर अशिया जब्त की। मुलजिम 25 साला V जगदेश्वर रेड्डी मुतवत्तिम प्रकाशम ज़िला रियासत आंध्र प्रदेश को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया। ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కృష్ణప్రియ మేడం గారి ఆదేశాల మేరకు నిన్న సాయంత్రం అనగా 23/6/2025 రోజు సాయంత్రం మైలదేవపల్లి వద్ద మా ఊళ్ళు అదే మైఫిల్ హోటల్ దగ్గర రూట్ వాచ్ నిర్వహిస్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ఆ ప్రదేశానికి రావడం జరిగింది. అతన్ని తనిఖీ చేయగా అతని వద్ద 23 గ్రాముల MDMA దాన్నే ఎక్స్టసీ అని అంటారు. అదొక రకమైన రసాయనికమైనటువంటి కెమికల్ అంటే సింథటిక్ డ్రగ్. అది సైకో యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. చాలా ప్రమాదకరమైంది. ఇక్కడ 3,000 నుంచి డిమాండ్ సప్లై బట్టి 5,000 వరకు అమ్ముతూ ఉంటాడు. సుమారుగా ₹1,00,000 పైచిలకు MDMA డ్రగ్ మాదక ద్రవ్యము. దీన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అతని దగ్గర ఒక మొబైల్ ఫోను, అదే ఒక 2 వీలర్. ఆ 2 వీలర్ ఏంటంటే
బజాజ్ సల్ఫర్ NS 200 మోటార్ సైకిల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों की मजम्मत करते हुए CPM के कारकुनों ने संतोष नगर IS सदन चौराहे के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। साउथ ज़िले DC मेंबर अब्दुल लतीफ़ की क़यादत में ये एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से की जा रही बर्बरियत को बंद किया जाए। आज जो सदन चौरस्ते पे ट्रम्प के बारे में जो पुतला जलाया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर CPM पार्टी के जानिब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ट्रम्प को ये बोलना है कि जो तुम्हारा गुंडागर्दी चल रही है और हर हमेशा आप क्या बोलते हैं मजलूमों को साथ देने का बगैर आप दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, ये गलत है। और आने वाले वक्त में CPM पार्टी यही बोलना चाह रही है नरेंद्र मोदी को भी कि आप जो इजराइल है और अमेरिका है इनको क्या बोलते साथ मत दीजिए। हमेशा का आप यही हो रहा कि आप हिंदुस्तान का मतलब ये है कि आप गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये है कि मार्केट पुलिस ने डकैती वारदात में मुलविस 18 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 43 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 59 ग्राम तिलाई जेवर भी बरामद किए। DCP नॉर्थ रश्मि पेरोमल IPS ने मीडिया को बताया कि बोयनपल्ली के साकिन एक मुतासरा शख्स की जानिब से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिमीन ने अपने आप को SOT रचाकुंडा बताते हुए नकद रकम और तिलाई जेवर उड़ा लिए थे। DCP ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील से वाकिफ़ करवाया। का डिटेक्शन के बारे में बताने के लिए फैसिलिटी करता है। इसमें हमें इनिशियल कंप्लेंट आया था कि जो मेन कंप्लेनेंट है हरीरा वो 5% कम गोल्ड में कम रेट में गोल्ड ले सकते हैं इंटेंशन से। एक लोकल उनके जो मीडिएटर हैं राजेश श्याम करके एक और आदमी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आया उसके थ्रू एक एरिया में डील करने के लिए कुछ अमाउंट उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो उस टाइम पे कुछ अननोन लोग आके उनको असॉल्ट करके ये 72 लाख तक कैश का बैग लेकर चले गए। ये हमारा इनिशियल कंप्लेंट था। इसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि जो इनका मेन मीडिएटर था राजेश श्याम वो ही इज़ कनेक्टेड टू अ बिगर ग्रुप जो वर्मा ब्रदर्स करके हमने आइडेंटिफाई किया है। ये दोनों ब्रदर्स इन्होंने इसको 2 महीने पहले एक और पर्सन केशव जो हमारे प्रीवियसली डिजर्टर है कांस्टेबल थे पहले, सो उनके साथ पूरा ज्वाइन करके पूरा कॉन्स्पिरेसी किया कि इस तरीके से इजी मनी गोल्ड के बहाने से इजी मनी ले सकते हैं करके उनके कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए ये उन्होंने पूरा प्लान बनाया। तो ये उन्होंने वहाँ पे शॉप में एंटर करके हम SOT राजकोंडा से आए हैं इस तरीके से जता के मार के वो बैग लेके चले गए। बाद में पता चला कि ये पूरा मीडिएटर का गैंग पूरा इंटरकनेक्टेड है। सो इनको ट्रेस करते हुए हमें पता चला कि जो मेन यहाँ से जो चोरी करके लेकर गए उनको रास्ते में ही ये लोन रिकवरी एजेंट्स जो बाइक का EMI नहीं पे करते तो उनको आइडेंटिफाई करके जो वापस सीज कर लेते हैं। ये लोन इन 4 लोगों ने उनको इंटरसेप्ट किया और जब उनके पास ये बैग मिला कैश का बैग मिला तो वो बाइक वही छोड़ के वो कैश लेके चले गए और उस कैश को उन्होंने अपने दोस्तों में अपने जो उनके रिश्तेदारों में मल्टीपल तरीके से बांट दिया। उसमें से एक आदमी रोशन जो है वो गोवा भी चला गया लेके पैसा और वहाँ पे भी उसने काफ़ी हद तक खर्चा किया इन पैसों का। तो इसको पूरा ट्रेस करने में जो हमने इनिशियली पहला जो गैंग था जो उसको ट्रेस किया उसके बाद उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसे कोई हमें मार के लेके गया है वहाँ पे लोन रिकवरी के नाम से लेके गया है तो वहाँ से CCTVs के हेल्प के और बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस के हेल्प से इसको हमने डिटेक्ट किया है। तो इस केस में नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने हमारे काफ़ी हेल्प की है, लोकल मार्केट PS की क्राइम टीम्स और पूरा महाकाली डिवीज़न और जनरल नॉर्थ जोन की क्राइम टीम्स ने बहुत एकजुट होकर एफर्ट दिखा के ऑलमोस्ट 43 लाख कैश और 50-60 ग्राम्स गोल्ड और 2 4-व्हीलर और 4 2-व्हीलर्स जो इस क्राइम में इन्वॉल्व
पासपोर्ट दरख्वास्तों की यकसुई में तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। तेलंगाना में पासपोर्ट दरख्वास्तों की यकसुई के लिए वेरी फास्ट नामी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसने मुल्क में अपनी मुनफरिद शिनाख्त हासिल कर ली और पुलिस को सरफहरिस्त मुकाम मिला है। नई दिल्ली में 24 जून मंगल को एक तकरीब में डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस शिवाधर रेड्डी ने ये अवार्ड हासिल किया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से पासपोर्ट दरख्वास्तों की जल्द यकसुई के लिए मौसर मंसूबा तैयार किया गया और ऐप वेरी फास्ट का लॉन्च किया गया ताकि काम का दबाव कम हो सके और बेहतर अंदाज में दरख्वास्तों की यकसुई हो सके। वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना पुलिस की जानिब से पासपोर्ट दरख्वास्तों की यकसुई कम वक्त में की जा रही है और 3 वर्किंग डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तों को कामयाब अंदाज में हल किया जा रहा है। शमशाबाद में पीर की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने मवेशियों के ताजरों पर हमला किया और उनकी इमलाक लूट ली। यह वाक़या रात 11 बजे के करीब शमशाबाद रोड पर उस वक्त पेश आया जब शहर के कुछ ताजिर एक गाड़ी में बड़े जानवर को शहर ले जा रहे थे। गौ रक्षकों के ग्रुप ने मुबैना तौर पर गाड़ी को रोका, ड्राइवर पर हमला किया और उसका मोबाइल फ़ोन के अलावा नकदी रकम भी छीन ली। मवेशियों को मुकामी गौशाला में मुंतकिल भी किया। हमले की इत्तला मिलते ही AIMIM के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और ज़फ़र ख़ान RGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने गौ रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जाँच कर रही है। नहीं साहब नहीं सुनते साहब हम अरे कैसा साहब बकरी से क्या लेना है सर्टिफिकेट स्टार्टिंग सर्टिफिकेट आज अरे उसका ने क्या पावर है? उसको कहीं को पावर है पकड़ने का? कालू सिंह बट्टू सिंह कालू सिंह अప్పుడు రిజిస్టర్ చేసినాము రిమాండ్ साहब है कि हम भी खामोश बैठे हुए नहीं साहब है कि हम भी खामोश बैठे ఆ పట్టు పవన్ ఎవరు ఉన్నాడు వీడు బయట నుంచి వచ్చాడు ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చిండు బండి ఇక్కడ నుంచి జరగొద్దు అని చెప్పిన నేను दूसरों को इंदों को भेजा अपने गाड़ी नक्का हटाओ बोल के बोले हमारे वाले लोकल शमशाबाद वाले అట్లాగా సార్ అన్న ఏమంటారు आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत और हुक्मरान जमात में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तालमेल ज़रूरी है। पार्टी कायदीन बूथ देहात और मंडल की सतह पर कमेटियां तश्कील दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने TPCC पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी के इजलास से किया खिताब।
रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के किए गए तबादले, बल्दी नज़्म नस्क को बेहतर बनाने के लिए किया गया इक़दाम। फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम एक आला सतही गोलमेज़ इजलास का एहतमाम, IT वज़ीर की शिरकत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। पासपोर्ट दरख्वास्तों की यकसुई में तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम किया हासिल। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस शिवाधर रेड्डी ने दिल्ली में अवार्ड किया हासिल। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।